Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear viewers, I am Mohammad Tayyib Ajaz, Assistant Professor of English, Government Ghazali College, Jhank. And in our series of preparing for lectureship examination as well as for preparation of literature, today we are going to discuss fiction and its detail, an introductory lecture about fiction, that is our today's work. So let us have the beginning of our lecture to the introduction of fiction. So what is fiction? Generally speaking, fiction is a narrative form in any medium consisting of people, events or places that are imaginary, or in other words not based strictly on the history or fact. यानी फिक्शन एक ऐसा वर्क होता है जो नैरेटिव फॉर्म में होता है. इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि हमने नैरेटिव फॉर्म को इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक पोएट्री. ये पोएट्री की तरह नहीं होता, इसमें मीटर, राइम, रिदम और इस तरह की चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं, बल्कि ये नैरेटिव फॉर्म में होता है. और इसमें डेफिनेटली देयर आर पीपल, इवेंट्स, प्लेसेस दैट आर इमेजिनरी. They are not all the time real, although we have already discussed that the writer always get the authors always get their material from their observation from real life. But in fiction the things are not based strictly on history or facts. वो चीज़ें फैक्ट या हिस्ट्री नहीं हो सकती, अगरचे राइटर उनसे मटेरियल ले सकता है, उनसे आइडियाज और कंसेप्ट ले सकता है. In its most narrow usage, fiction refers to written narratives in prose and often specifically novels, novellas, and short stories. If you people remember, in our previous lecture we have discussed the types of fiction as number 1 as novel, number 2 as novella, and number 3 as short story, and all these three types were based on their size or length. The novels are bulky, novellas are medium sized, whereas short stories are short as their name suggests. So, a fiction is a narrative form in any medium which consists of events which are not directly very much reality based. So, the elements of a fiction. What are the things the fiction consists of? So, the fiction consists of the 5 things. Number 1, the plot. Number 2, the settings. Number 3, the characters. Number 4, the point of view. And number 5, the theme. And now let us have a look on all these things gradually. Plot. So what is a plot? Plot is author's arrangement of the events. This is actually the arrangement of the events. How did the events take place in a chronological way, in a systematic and in a symmetrical way? It is simply the arrangement of the events as presented in the work. It has a beginning, it has a middle, and it has an end. The plots basically follow the following image, following picture, which is basically a pyramid-like shape, and this is called Freytag pyramid. So in this Freytag pyramid, we have a pyramid-like shape, something like a pyramid. And this pyramid has 3 ends. The first one beginning end, the second one climax, and the third one the end. So the closing and the finale, what we call. So let us have a look at the things. The first thing is the exposition. In any work, in any incident, in any story, the first thing that takes place is the exposition. सबसे पहले characters expose हो रहे होते हैं, issues आहिस्ता आहिस्ता expose हो रहे होते हैं. अगर आपको कोई भी रिसेंटली ड्रामा याद हो जो आपने देखा हो, पाकिस्तानी ड्रामा इवन और इंडियन ड्रामा, तो आपको याद होगा कि जो इनिशियल एपिसोड्स होती हैं उनमें कैरेक्टर्स जस्ट एक्सपोज हो रहे होते हैं. जैसे आपने रिसेंटली वो ड्रामा देखा, उडारी आपने देखा. सो यू कैन से कि इनिशियल स्टेज जो है दैट इज द एक्सपोजिशन स्टेज, वेयर द कैरेक्टर्स आर एक्सपोज्ड, वेयर द थिंग्स आर एक्सपोज्ड, where even the complications are exposed. From exposition, the action gradually moves upward. वो action जो है वो gradually upward होता है.
वहाँ पे एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है जिसे आप इंसाइटिंग इंसिडेंट कहें, लेकिन वो नहीं भी हो सकता। वो एक्शन ग्रेजुअली, स्लोली एंड स्पीडीली बढ़ रहा होता है, जिसे हम राइजिंग एक्शन का नाम देते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाती हैं, और वो ये सारी चीज़ें हमें मिला के कहाँ लेके जाती हैं? दे टेक अस टूवर्ड्स द क्लाइमैक्स, विच इज़ द सेकेंड and the highest point of the plot. The rising action and the exposition take us towards the climax. At the climax point, the tensions, the problems, the incidents are at the peak. ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? ये peak पे होती हैं, not peaks. So all these things reach their climax, reach their peak. The incidents, the events, the tension, the issues, the problems, they reach a climatic point, and then starts the falling action. फिर फॉलोइंग एक्शन स्टार्ट होता है, और इसमें क्या होता है? द सॉल्यूशंस कम slowly and steadily. The problems are getting solved, the issues are getting solved. और ये फॉलोइंग एक्शन अल्टीमेटली हमें कहाँ लेके आता है? ये हमें रेजोल्यूशन पे लेके आता है, ये हमें एंड पे लेके आता है, ये हमें डिनाउमा पे लेके आता है, डिनाउमा जिसे फिनाली भी कहते हैं. सो द थिंग्स आर all settled and everybody gets one's own share. So these three are the major points in a plot: the rising action, the exposition, the climax, the end. You can say that it is, you can simply say the beginning, the middle, and the end. So these three are the major parts of this Freytag's pyramid, and further the rising action, the falling action, and the solution of the issues is there. So let us have a look at these stages. Although we have already discussed, let us have a glimpse of the things. Exposition, the start of the story, the situation before the action starts. The complication, the rising action, the series of conflicts, and the crisis and the story that leads towards the climax. Basically, these minor crises and conflicts lead the story towards the climax. If there is no conflict, there would be no spice in the story. So you people remember well that whenever there are no spicy events and incidents, burning issues in the movies or in the works or in the books, even people do not take much interest in them. So then comes the climax, the turning point, the most intense moment. At this point, the intensity has reached to its climax. Either mental or in action, whatever it is, the reader wonders what will happen next. ये जो क्लाइमेक्स होता है, यहाँ पे सस्पेंस, टेंशन, इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं कि रीडर खुद ही ये सोचे जा रहा होता है कि अब क्या होगा, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट. तो ये हमारा क्लाइमेक्स होता है, और वो ये भी सोच रहा होता है कि हाउ आर द थिंग्स गोइंग टू बी सेटल्ड, ये चीज़ें सेटल कैसे होनी. ठीक है. इवन इवन he or she is of the opinion कि whether these things are going to be resolved or not, कि ये चीज़ें अब रिजॉल्व होंगी भी सही या नहीं होंगी. That is our life. Then comes the fourth stage, the falling action. The events and the complications begin to resolve. चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं. The events between the climax and the resolution are the falling action. And then comes the final stage, the resolution, the denouement, the finale. इसकी pronunciation tricky है, finale इसको final नहीं पढ़ना, इसको denouement पढ़ना है. ठीक है. The conclusion, the untangling of the events in the story. In other words, the solution of all the issues. जितने भी issues पीछे राइज हुए थे, उन सारे के सारे इश्यूज का सलूशन जो है वो यहाँ पे आ जाता है. दीज आर द स्टेजेस ऑफ द प्लॉट. आप इसको जनरली बात करें तो बिगिनिंग, मिडल और एंड. अदरवाइज इंट्रोडक्शन, द राइजिंग एक्शन, द क्लाइमैक्स, द सॉल्यूशन एंड द एंड. 5. So let us have a look at the types of the plot. Events in a story can be presented in a variety of way. जितने भी हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं उन्हें मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया जा सकता है. तो हर एक टाइप जो है वो एक प्लाट होती है. सो लेट अस हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्लाट, द लीनियर प्लाट.
The linear plot is always having a chronological order. They have the 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 events happening in a systematic, in a chronological way, in a systematic way. वो तरतीब से चलते हैं, with the passage of the time चलते हैं. For example, story begins with what happened first, then what happened later on in a regular time and development of the events to the end. वो तरतीब से, जैसे बच्चा है वो पहले पैदा होता है, उसकी बर्थ है, फिर उसकी एडल्टहुड है, फिर उसकी मेच्योरिटी है, फिर उसकी ओल्ड एज है, और फिर एट द एंड उसका बुढ़ापा है या उसकी डेथ है. तो दिस थिंग इज टेकिंग प्लेस इन अ लीनियर वे, इन अ क्रोनोलॉजिकल वे. ऐसे जो है वो तरतीब से बिगिन करके एंड की तरफ बढ़ता जाता है. सो इफ द incidents events in the plot are exposed in this way, that plot is called a linear plot. Some stories begin at the end, then lead up to why and how the things should be shown or how the things are developed. Some stories begin in the middle of the things. आप लोग मूवीज देखते हैं, आपके सामने इस तरह की चीजें आती रहती होंगी कि कुछ दफा मूवीज जो है वो ऐसे ग्रेजुअली चलती हैं कि कैसे हीरो जो है उसने स्टार लिया है, वो चलता जा रहा है इवेंट्स की तरफ. समटाइम आपको मिडल से जाके बताया जाता है कि जी एक इवेंट का मिडल आपको शो करवाया जाता है और उससे आगे आपकी स्टोरी बिगिन होती है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्लॉट एंड लीनियर प्लॉट. Then comes the second type of the plot, that is the flashback. Flashback. This is a technique in which the author interrupts the plot of the story to tell an incident of an earlier time. Flashback होता है माजी में जाना, चीज़ों को याद करना. So the writer basically goes back in time. आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी कि वो मूवी स्टार्ट होती है तो somebody is sitting in a थॉटफुल वे और उसके माइंड में एक मूवी चल रही होती है और वो बहुत कहीं पीछे पहुंचा होता है. ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो अंग्रेज मूवी जो है, दैट इज अ टाइप ऑफ फ्लैशबैक प्लॉट, कि वो बाबा जी जो है वो बैठे हैं और वो माजी में पहुंच जाते हैं और वहां से अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देते हैं. लाइक गिविंग द रीडर अ मेमोरी, उनको माजी का याद करवाते हैं. देन कम्स द फोरशैडोइंग. Foreshadowing is the writer's technique in which the author provides clues or hints to what is going to happen later on in the story. आपको कुछ इवेंट्स ही ऐसे सामने आपके आ जाते हैं कि बाद में क्या होने वाला है. आप पहले से ही रीडर जो है या व्यूअर जो है वो कुछ जज करके बैठा होता है. वी कॉल इट अ foreshadowing type of plot. So another important thing in the story and the plot and the fiction is conflict. Conflict is the struggle between two forces in a story. You know, even the forces may be more than two. So this is what a conflict is: a struggle, a clash between the working forces in a story. It is a struggling position between two opposing forces, usually a protagonist and an antagonist. यानी हीरो और विलन के बीच में जो एक कश्मकश है उसे हम कन्फ्लिक्ट का नाम देते हैं. देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स. वी हैव इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव external conflict, we have social conflict. That internal conflict takes place in the brain of the people. This is psychological. The external conflict, as its name shows, this is external, this might be physical. And then the social conflict. The internal conflict, the psychological conflict. If a character experiences two opposite emotions or desires, इंसान के दिमाग के अंदर भी एक पूरी की पूरी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही होती है, टू बी और नॉट टू बी वाली. वेदर ही शुड बी फॉल विक्टिम टू इमोशंस और ही शुड बी एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द रीजन. उसकी डिजायर, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके पैशंस, उसके रिलेशंस, कुछ भी हो सकता है जो उसके माइंड में चल रहा हो और उसको डबल वे का सामना हो कि उसने दोनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट करनी. दैट इज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट.
So it may be between emotion, it may be between desires, it may be between the virtue and the vice, अच्छाई और बुराई, good or evil, whatever it is. उसके माइंड में, हीरो के माइंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, okay, जो उसको कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में लेके आती हैं. ऑल द थिंग्स हैपनिंग इनसाइड हिम, उसके अंदर, उसके माइंड के अंदर कुछ भी हो रहा है. दिस disagreement causes the character to suffer mental agony. Definitely when there is a conflict in the mind, there is a mental agony, and it develops a unique sort of tension in the storyline. और ये स्टोरी लाइन के अंदर एक टेंशन पैदा करती है. इवन रीडर या व्यूअर जो है वो भी बड़ा क्यूरियस होता है कि जी अब आगे क्या डिसीजन होने वाला है. मार्क्ड बाय अ लैक ऑफ एक्शन, और उसमें अक्सर एक्शन जो है वो लैक कर रहा होता है. सो द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और अ साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इज अ कॉन्फ्लिक्ट विद इन द माइंड ऑफ द character, and it may be between the good or the bad or the relations or the vice or the virtue or whatever it is. Then comes the external conflict, the physical conflict. It is marked by characteristics involvement of an action wherein a character finds himself in struggle with those outside forces that hamper his progress. Basically, hero जो है वो कुछ करना चाह रहा है, he wants to make a progress in any way, और उसकी जो भी एरिया ऑफ वर्क है उसके राह में जो भी रुकावटें हायल हो रही हैं, all those are the physical or external conflicts. The most common type of external conflict is where a protagonist fights back against the antagonist's tactics that impede his or her advancement. फिजिकल या एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जहाँ पे एक अदद हीरो मौजूद है, प्रोटैगनिस्ट मौजूद है, और एक अदद एंटैगनिस्ट मौजूद है. और वो एंटैगनिस्ट क्या करता है कि वो हीरो के जितने भी टैक्टिक्स हैं, उसके जितने भी स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के, एडवांस होने के, उन सब स्टेप्स को वो आगे आके रोक रहा है, उनमें रुकावट डाल रहा है. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फिजिकल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट. द सेटिंग. व्हाट इज द सेटिंग? Setting is an environment or surrounding in which an event or story takes place. जहाँ पे स्टोरी रूनुमा हो रही है, जहाँ पे एक्शन वाकई हो रहा है, उसके इर्द गिर्द जो भी मौजूद है वो सारे का सारा क्या है? सेटिंग है. इट में प्रोवाइड पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसमेंट एंड द टाइमिंग. वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस वक्त में है, इर्द गिर्द क्या है, लोग कौन से मौजूद हैं, वगैरह वगैरह. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द सेटिंग. It also include the circumstances of the story like weather condition, the social class. जी, क्योंकि सोसाइटी का एक्शन हम शो कर रहे होते हैं तो उसमें ये वेदर कंडीशन है, सोशल क्लास है, या उसके अलावा उठने बैठने की जगह हैं, उठने बैठने के तरीके हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो सेटिंग का हिस्सा होते हैं. Components of setting. There are three major components of the setting. Number one, the social environment. Number two, the place. And number three, the time. The setting could be an actual region. सेटिंग्स आपने अक्सर मूवीज में भी देखा होगा, ड्रामाज में भी देखा होगा. स्टेज जो सेट किया जाता है वो सारे का सारा जो आपके सामने मौजूद है, जहाँ कैरेक्टर्स मौजूद हैं, वो सेटिंग है. ठीक है. सो इट मे बी एन एक्चुअल रीजन, ये हकीकी जगह भी हो सकती है, और अ सिटी मेड लार्जर देन लाइफ, या फिर हकीकत से बढ़ के भी कोई चीज़ हो सकती है, या हकीकत से कम भी कोई चीज़ हो सकती है. इवन द सेट, जो सेट लगाया जाता है, जो स्टेज सेट किया जाता है, दैट इज योर सेटिंग. कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं फिक्शन का. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स. कैरेक्टर यू नो वेल, एवरीबॉडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्शन ऑफ द स्टोरी इज अ कैरेक्टर. वो कोई भी हो सकता है, आगे हम देखते हैं वो कौन कौन हो सकता है. So there are different types of characters and each serves its unique function in a story or a piece of literature. हर एक का अपना एक specific role होता है. A character can be anyone. It can be a person, it can be even figure, it can be even an inanimate object, it may be an animal, or even it may be something personified or whatever it is. Normally हमारे पास person, figures, inanimate objects या animals होते हैं. ठीक है. There are different type of character and each serves its unique function in a story. क्योंकि multiple types of characters होते हैं तो हर एक का एक अपना ही रोल होता है, स्पेसिफिक रोल होता है स्टोरी में, लिटरेचर में, उस वर्क में जिस पे आप
जिसको आप गो थ्रू कर रहे हैं। कैरेक्टर्स में दो मेजर कैरेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं? नंबर 1 इज द एंटागनिस्ट एंड नंबर 2 इज द प्रोटैगनिस्ट। यू कैन इवन राइट लाइक दिस अकॉर्डिंग टू द वर्थ और द इम्पोर्टेंस के एक एंटागनिस्ट होता है, विलन होता है, और एक प्रोटैगनिस्ट होता है, हीरो होता है। एन एंटागनिस्ट इज मोस्टली पोर्ट्रेड एज अ बैड गाय। विलन को अक्सर और बेशतर बैड गाय के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? बिकॉज ही इज द अपोनेंट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। वो हीरो का दुश्मन होता है, उसका एंटेगनिस्ट का, प्रोटैगनिस्ट का एंटी होता है, मेन कैरेक्टर का दुश्मन होता है, इसलिए अक्सर बुरा ही दिखाया जाता है। द एक्शन इन द स्टोरी राइजेस फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट। स्टोरी का स्पाइस ही ये होता है कि हीरो और विलन की जो चपकलिश है वो स्टोरी का स्पाइस होता है, वहीं से आपकी स्टोरी जनरेट होती है और आगे चलती है। द एंटागनिस्ट कैन बी अ पर्सन, एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एन एनिमल और नेचर इटसेल्फ। एंटागनिस्ट कोई भी हो सकता है, वो रियल लाइफ पर्सन हो सकता है, वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई जानवर हो सकता है, नेचर हो सकती है, वो तूफान, बारिश, आंधी, सैलाब, हालात, किसी तरह के हालात भी एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर सकते हैं। द प्रोटैगनिस्ट। एवरी स्टोरी हैज अ प्रोटैगनिस्ट। डेफिनेटली हर स्टोरी का एक हीरो होता है। इवन स्टोरी में एंटैगनिस्ट मिसिंग हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट मिस नहीं हो सकता। द मेन कैरेक्टर, और वो कौन होता है? मेन कैरेक्टर होता है हु क्रिएट्स द एक्शन ऑफ द प्लॉट एंड एंगेजेस रीडर, अराउजिंग देयर एम्पैथी एंड इंटरेस्ट। द प्रोटैगनिस्ट इज द वन, often a hero or a heroine of the story, as the whole plot moves around him or her। पूरे का पूरा प्लॉट ही उसी एक कैरेक्टर के गिर्द घूमता है, जो आपका हीरो हो सकता है, जो आपकी हीरोइन हो सकती है, जो आपका प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। We have one more division of the characters, the dynamic characters and the static characters. A dynamic character changes during the course of a novel or a story। Dynamic character की खूबी ही ये है कि वो डायनामिक है, वो चेंज हो रहा है। वो बिगिनिंग में आपको कुछ और फील होगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके कैरेक्टर में बहुत सारी डेवलपमेंट्स आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगी, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो आपको डिफरेंट फील होगा। दिस चेंज इन कैरेक्टर और his or her outlook is continuous। ये चेंज, ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस होती है। दैट इज वाई समटाइम डायनामिक कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ डेवलपिंग कैरेक्टर, और इसी वजह से हमें समटाइम डेवलपिंग कैरेक्टर का नाम भी डायनामिक कैरेक्टर्स को दिया जाता है। दीज कैरेक्टर्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम वेल एस्टेब्लिश्ड। ये वेल एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट मैच्योर प्रूव होते हैं, okay? And something like that। Then comes the static character। A static character remains the same throughout the story। Static character पूरी स्टोरी में static ही रहता है, जामिद रहता है, मुंजमद रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आती। Even the events in the story or novel do not change characters' outlook, perception, habit, personality or motivations। उसमें चूंकि कुछ भी चेंज नहीं आई, तो स्टोरी जैसे मर्जी बढ़ती जाए, ना उसकी आउटलुक चेंज होती है, ना उसकी हैबिट्स चेंज होती हैं, ना उसकी मोटिवेशन चेंज होती हैं, कुछ भी चेंज नहीं होता। एवरीथिंग इज स्टैटिक। सब कुछ जो है वो जामिद है, मुंजमद है, साकिन है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। दैट इज समथिंग कॉल्ड अ स्टैटिक कैरेक्टर। A round character। राउंड कैरेक्टर समथिंग लाइक अ डायनामिक कैरेक्टर, उससे मिलता जुलता कैरेक्टर है, ठीक है। दीज कैरेक्टर्स आर वेल डिवेलप्ड। ये कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? वेल डिवेलप्ड एस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं, और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दे आर मोर रियलिस्टिक एंड दे डिमॉन्स्ट्रेट मोर डेप्थ इन देयर पर्सनैलिटीज। ये अपनी पर्सनैलिटीज में बड़ी डेप्थ शो करवाते हैं। दे कैन मेक सरप्राइजिंग और पजलिंग डिसीजंस। डिसाइसिव होते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं बड़ी अच्छी से,
एंड अट्रैक्ट रीडर्स अटेंशन। डेफिनेटली जो मेन कैरेक्टर होता है जिसके गिर्द आपकी स्टोरी मूव कर रही है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो एक आधी नेगेटिव चीज़ होती है। तो ये जो राउंड कैरेक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये रीडर की अटेंशन कैच करते हैं, ये आई कैचिंग कैरेक्टर्स होते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट देम एंड राउंड कैरेक्टर्स रिएक्ट टू सच फैक्टर्स रियलिस्टिकली। ये रियलिस्टिक वे में रिप्लाई करते हैं। Then comes the flat character. A flat character does not change during the story. ये वही static character है, does not change, ये change नहीं हो रहा है, ठीक है। Also he or she usually only reveals one or two personality traits. They remain same almost throughout the course of action. जैसे जैसे course of action बढ़ता जाता है ये वैसे के वैसे मुंजमद रहते हैं, साके रहते हैं। Characterization. Characterization is a literary device that is used step by step in literature to highlight and explain the details about a character in a story. आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा, मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ आथर्स का। आपको चौसर का आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कैरेक्टर्स को लिटरेरी वर्क के अंदर शो करवाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ की जाती है। It is the initial stage in which writer introduces the character with noticeable emergencies. जी, राइटर क्या करता है, वो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है विद नोटिसेबल इमरजेंसीज। उनकी एंट्रीज जो हैं, अगर आपको याद हो तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी वर्क आपको कोई ना कोई जो कैरेक्टर है जब वो एंटर होता है तो उसकी एंट्री बड़ी कमाल की होती है। अगर आपको ड्रामा अहद वफा याद हो तो आपको उसमें हर नए कैरेक्टर की एंट्री क्वाइट यूनिक, क्वाइट डिफरेंट और क्वाइट नोटिसेबल नजर आएगी। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द कैरेक्टर द राइटर ऑफन टॉक्स अबाउट हिज बिहेवियर। डेफिनेटली कैरेक्टर को रिवील करने के लिए राइटर उसके बारे में जनरली बातचीत करते हैं, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड, उसकी लाइक डिसलाइक के बारे में, और ऐसे ही वो कैरेक्टर ग्रेजुअली ऑडियंस के सामने एक्सपोज हो रहे होते हैं। Then, as the story progresses, the thought process of the character increases or moves forward. There are certain types of characterization. Characterization होती कैसे है उसकी भी हमारे पास different types हैं. Number one is the direct और explicit characterization. Direct characterization या explicit characterization होती है जी, जिसमें क्या होता है कि a direct approach towards building character is utilized. कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। इट यूजेज अनदर कैरेक्टर, नैरेटर और प्रोटैगनिस्ट हिमसेल्फ टू टेल द रीडर और द ऑडियंस अबाउट द सब्जेक्ट। और इसमें कोई एक और कैरेक्टर हो सकता है, नैरेटर खुद हो सकता है या हीरो खुद हो सकता है जो अपने ही बारे में अपने ऑडियंस को बताता है, वो इंट्रोड्यूस करता है, या वो खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है या उसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले कोई और लोग वहाँ पे मौजूद हैं या इवन नैरेटर खुद मौजूद है। इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन एक्सप्लिसिट के मुकाबले में है इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन। ये थोड़ी डिफरेंट है। क्या होता है, द ऑडियंस हैज टू डिड्यूस फॉर देमसेल्फ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर बाय ऑब्जर्विंग हिज और हर थॉट प्रोसेस। ऑडियंस जो हैं उन्हें डायरेक्ट किसी भी कैरेक्टर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, बल्कि विद द कोर्स ऑफ एक्शन दे आर सपोज टू डिड्यूस द थिंग्स बाय देमसेल्फ। उन्हें खुद ही राइटर के इवेंट्स के थ्रू, इंसिडेंट्स के थ्रू खुद ही कैरेक्टर के बारे में मालूम करना होता है, खुद ही नतीजा अखज़ करना होता है। बाय हिज बिहेवियर, हिज स्पीच, हिज वे ऑफ टॉकिंग, अपीयरेंसेस और द मैनर ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर कैरेक्टर्स एज वेल एज बाय डिसर्निंग रिस्पॉन्सेज ऑफ द अदर कैरेक्टर। वो राइट कैरेक्टर का अपने आप के साथ और कैरेक्टर का दूसरे कैरेक्टर्स के साथ जो भी लेन देन बातचीत चल रही होती है, उनका बिहेवियर, प्रोसेस, टॉकिंग, ड्रेसिंग, सारी चीज़ें मैटर करती हैं और रीडर उससे खुद ही नतीजा खज करता है कि ये कैरेक्टर कैसा होगा। द मेथड ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, हाउ द कैरेक्टर्स आर रिवील्ड। कि कैरेक्टर रिवील कैसे किए जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द
फिजिकल अपीयरेंसेस, हम एक कैरेक्टर को देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये किस तरह का कैरेक्टर है, ये रिच है, पुअर है, एवरेज है, बिलो एवरेज है, वाइट कॉलर है, वट एवर इट इज. देन वी हैव द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स, हमें उनके नामों से पता चलता है कि ये अल्लाह रखा है, या मोहम्मद बख्श है, या गामे खान है, या भूरा पहलवान है, या माजा पहलवान है, या मोहम्मद अब्बास है, वट एवर इट इज़. तो ये नामों से भी हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर इट इज़. ये मॉड स्क्वाड कैरेक्टर है, पढ़ा लिखा कैरेक्टर है, अनपढ़ है, वट एवर इट इज़. देन कम्स द डिटेल्स टोल्ड बाय द नरेटर. स्टोरी को नरेट करने वाला भी समटाइम्स राइटर के बारे में कुछ बता सकता है. वंस अपॉन अ टाइम ऐसा हुआ, एक बंदा था जो ऐसा था, जो वैसा था, वो फलां था, वो ये था, वो था. और इवन देयर माइट बी द other characters talking about some characters to explain about him or her. Then comes the point of view. Point of view is the angle of considering things which shows us the opinion or the feelings of the individual involved in a situation. जो लोग किसी सिचुएशन में हीरो हीरोइन, उसके एड्स असिस्टेंट कैरेक्टर जो हैं, मेजर या माइनर कैरेक्टर, जो भी किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व होते हैं, उनका वे ऑफ थिंकिंग, उनका एंगल ऑफ कंसिडरिंग थिंग्स जो है, ये हमें क्या बताता है, इसे हम कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है. In literature, point of view is the mode of narration that an author employs to let the readers hear and see what takes place in a story, poem or essay. Basically, ये राइटर का बयानिया होता है. This is narrative. ठीक है. In fact, the narrative or the point of view in a literary piece is the thing that the writer actually transfers to the readers or his audience. वो जो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को बताता है, इन बिटवीन द लाइंस बताता है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है. वो इवेंट्स के जरिए जो कुछ बताना चाह रहा है, वो बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ व्यू है. पॉइंट ऑफ व्यू इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम रियल लाइफ और द फिक्शन. ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उसकी ओपिनियन है, उसका रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट है, उसकी सोच है, जो उसने कहाँ से ली है, जो उसने रियल लाइफ से ली है, या जो उसने फिक्शन से ली है. What somebody thinks about something, that is the point of view. और ये पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी राइटर आपको डायरेक्टली नहीं बताएंगे, ठीक है, कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और इसके बारे में मैं यूं कहता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ, नहीं. द ऑथर ऑलवेज अनफोल्ड्स द थिंग्स इन अ सिस्टमैटिक वे. वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए इवेंट्स बता रहा है. ठीक है. जैसे अगर हम उसी ड्रामा ऐद वफा की मिसाल लें, ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू राइटर के मिलेंगे. ठीक है, कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू फैमिली लाइफ के बारे में क्या है, पॉलिटिक्स के बारे में क्या है, और फ्रेंडशिप के बारे में क्या है, और फ्रेंडशिप में लिमिटेशंस क्रॉस करने के बारे में क्या है, वगैरह वगैरह. पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करने के लिए क्या होता है जी, द राइटर इन्वॉल्व द यूज ऑफ आइदर ऑफ द टू प्रोनाउंस आई और वी, दैट वी कॉल फर्स्ट पर्सन. ठीक है, सम टाइम वो आई का प्रोनाउन यूज करवा सकता है. आई फेल्ट लाइक आई वाज गेटिंग ड्राउन्ड विद शेम एंड डिस्ग्रेस, यहाँ उसने डायरेक्ट ही फर्स्ट पर्सन यूज करके उसने बता दिया है. सम टाइम ही यूजेस द सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू. Sometime you cannot clearly discern between anger and frustration. अब उसने यू को जो है सामने रख के उसको मुखातिब करके ही अपने माइंड की बात बताई है कि बंदा बाज दफ़ा क्या करता है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन के बीच में डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर सकता. और सम टाइम वो मोर इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन को यूज़ करता है, और वो ही शी इट दे वो एटसेट्रा के वर्ड्स यूज़ करके पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता है. जैसे स्टीवर्ड इज अ प्रिंसिपल्ड मैन, he acts by book and never lets you deceive him easily. Okay? So these three techniques are used by the writers to express their point of view. Theme. A theme in the main idea or the underlying meaning of a literary work which may be stated directly or indirectly. किसी भी लिटरेरी वर्क का जो मेन आइडिया होता है, वो उसका थीम होता है, और वो डायरेक्टली भी बताया जा सकता है और वो इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है.
अंडरलाइंग मीनिंग जो होते हैं वो उसका थीम होता है कि व्हाट डज एक्चुअली द राइटर वांट टू से. Major theme. A major theme is an idea that a writer repeats in his literary work, making it more significant idea in the work. कि जो राइटर मेन आइडिया, मेजर आइडिया अपने वर्क में लेके आता है वो उसका मेजर थीम होता है, और वो हमें हर जगह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली राइटर के से नज़र आता है कि वो उसको रिपीटेडली आगे लेके चल रहा है. आपको शिकवा जवाब शिकवा का थीम बड़े वाजे से पता होगा, आपको पैराडाइज लास्ट का थीम बड़े अच्छे से पता है, आपको रेप ऑफ द लॉक का थीम आइडिया है कि वो क्या था. A minor theme. A minor theme, or on the other hand, refers to an idea that appears in the work briefly, giving away to another minor theme. Major theme के साथ multiple minor themes हो सकते हैं जो major theme के साथ parallel चलते हैं, और वो छोटे छोटे themes हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ involve होते हैं. The types of fiction. हमने फिक्शन को शुरू में 3 और तरह से भी डिस्कस किया था कि उसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं. द नावल, द नोवेला, द नॉवेलेट एंड द शॉर्ट स्टोरी. ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फिक्शन उसके साइज पे हैं कि नावल जो है वो 5-6 हज़ार वर्ड से 200-250 पेजेस का होता है, लॉन्गर वर्क होता है, और इसको ख़त्म करने के लिए हमें मल्टीपल सेशन जो है वो इन्वॉल्व करने पड़ते हैं. नोवेला जो है ये 40-50 पेजेस का हो सकता है, 60 का हो सकता है, 1500-2000 लाइन्स पे हो सकता है. ठीक है, और इसको आप ऑलमोस्ट एक आध सिटिंग में या 1-2 सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं. शॉर्ट स्टोरी ऑन द अदर हैंड इज एज इट द नेम एक्सप्रेसेस, ये शॉर्टर वन होती है. ठीक है, आप इसको एक ही सिटिंग में बैठ के ख़त्म कर सकते हैं. नावल के बरक्स, नावल में आपको ज़्यादा सिटिंग्स चाहिए होती हैं, तो शॉर्ट स्टोरी में आप जल्दी से आप इसको बैठ के पढ़ सकते हैं. तो ये 3 टाइप्स ऑफ फिक्शन जो हैं ये अकॉर्डिंग टू द साइज है. जबकि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंटेंट रियलिस्टिक फिक्शन हो सकता है, हिस्टोरिकल फिक्शन हो सकता है, साइंस फिक्शन हो सकता है, फैंटेसी या फेरी टेल्स हो सकती हैं, और मिस्ट्री हो सकती है. वी हैव द 5 real fictions types: the realistic fiction, the historical fiction, the science fiction, the fantasy or the fairy tales, and the mystery. Novel, a famous fiction. Novel is based on the Latin word novellus, which means something new, young, fresh, latest, an innovative thing, a new thing. If something is novel, it is new but also original, fresh and unique. अगर कोई चीज़ नावल है तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है, ये ओरिजिनल है, ये फ्रेश है, और ये यूनिक है. A novel as invented prose narrative of considerable length and a certain complexity that deals imaginatively with human experience, usually through a connected sequence of events involving a group of persons in a specific setting. जी हाँ, नावल में क्या होता है, एक स्पेसिफिक सेटिंग है, उस स्पेसिफिक सेटिंग में क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन है, मल्टीपल पीपल हैं, और फिर और साथ में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स है. डेफिनेटली जहाँ पे लोग हैं वहाँ पे इवेंट्स हैं, उनका सीक्वेंस है, और ये सब मिल मिला के क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करते हैं इन अ सिस्टमैटिक वे. It emerged in Spain during the 17th century and in England during the 18th century. स्पेन में ये 17th century में इमर्ज हुआ नावल, और इंग्लैंड में 18th century में इमर्ज हुआ. टाइप्स ऑफ नावल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी समटाइम पूछा जाता है. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टाइप इज द पिकरेस्क नावल. आपको हेनरी फील्डिंग याद आया होगा पिकरेस्क नावल से. A picaresque novel refers to a fiction that follows the adventures of a rogue character. उसका कैरेक्टर कैसा होता है, a rogue character, not something very ideally good. A picaro, और उसे क्या कहा जाता है, a picaro,
who rambles along, relating the shady details of his everyday experience in an autobiographical form. Most of the time ये एक रोड साइड स्टोरी होती है, रोड के ऊपर होने वाली कहानी होती है कि जर्नी भी चल रहा है और जर्नी के साथ साथ उसके इवेंट्स भी टेक प्लेस कर रहे हैं। हेनरी फील्डिंग का कौन सा नावल आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो? Then comes the Bildungsroman. It's called an educational novel or a novel of education. It generally refers to by its German name, and it describes the development of protagonist from childhood to maturity. ये प्रोटैगनिस्ट को एक चाइल्ड की शक्ल में, बच्चे की शक्ल में शो करवाता है और वो बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें लर्न करके एडल्टहुड की तरफ जाता है, मैच्योरिटी की तरफ जाता है। ओके, चार्ल्स डिकन्स अगर आपको याद हो तो उसके कुछ नावल जो हैं वो आपको इस तरह के नावल नज़र आ सकते हैं, जहाँ पे हीरो जो है वो एक बच्चा है और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करता है और लर्न करता है। मैं आपको चार्ल्स डिकन्स के और हेनरी फील्डिंग के नावल का नाम नहीं बताए हैं ताकि आप खुद उनको फाइंड आउट करें कि पिकरेस्क नावल कौन से हैं और हेनरी फील्डिंग के नावल ऐसे कौन से हैं जहाँ पे हीरो एक बच्चा है और वो आगे ग्रो करता है। एपिस्टलरी नावल, द नावल इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। वो नावल्स ऐसे हैं जैसे लेटर्स की शक्ल में चलते हैं एज अ मीन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन, और चूंकि वो लेटर्स होते हैं तो वो फर्स्ट पर्सन की नरेशन में चल रहे होते हैं और आप उन्हें लेके आगे चल रहे होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लेटर्स। उर्दू का एक मशहूर नावल जिस पे पाकिस्तान में पाबंदी भी लगी रही थी, आपकी नज़रों से किसी दौर में गुजरा होगा, राजा आरिफ उसके राइटर थे और उसके नावल का नाम था झूठे रूप के दर्शन। दैट वाज वेरी मच फेमस सॉर्ट ऑफ वर्क इन द उर्दू लिटरेचर इन पाकिस्तान। So in the type of novel, our next type is the historical novel. The historical novel where the action takes place within a realistic historical context. As we have already discussed, that the fiction takes its material not from reality but from imaginary things, but it does not all the time mean that the writer is not having anything realistic. राइटर इक्वली हकीकत से भी चीज़ें ले सकता है और उसके साथ साथ वो ये जब हिस्ट्री की बात को लेके चलता है, हिस्ट्री के कुछ इवेंट्स को वो पोर्ट्रे करता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एक हिस्टोरिकल नावल है। आपने बहुत सारे हिस्टोरिकल नावल, हिस्टोरिकल ड्रामास देखे होंगे। हमारा उर्दू लिटरेचर में अब्दुल हलीम शरर का बहुत बड़ा नाम है हिस्टोरिकल नावल्स में। उनके हिस्टोरिकल नावल्स बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा आपने यूसुफ बिन ताशफीन और तलवार टूट गई, ये भी आपने पढ़े होंगे अगर आपको राइटर का नाम याद आ रहा हो, नसीम हिजाजी। He was very much famous for the historical novel. He recently passed away. So नावल में अगली एक हमारे पास टाइप है न्यू जर्नलिज्म। न्यू जर्नलिज्म is the type of novel which uses the yarn of the novel to revoke incidents based on real events. इसको जर्नलिज्म ही इसीलिए कहा जाता है कि ये रियलिटी बेस्ड इवेंट्स जो हैं, जो हमारे इर्द गिर्द रूनुमा हो रहे होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको न्यू जर्नलिज्म का नाम दिया जाता है। द सैटिरिकल नावल हाईलाइट्स द वीकनेसेस ऑफ द सोसाइटी थ्रू द एग्जैजरेशन ऑफ सोशल कन्वेंशंस। ये सोसाइटी को मॉक करता है, उसकी वीकनेसेस को हाईलाइट करता है। सैटायर एज एन एलिमेंट इसमें यूज हो रहा होता है, इसलिए इसको सैटिरिकल नावल कहा जाता है। यूटोपियन नावल्स आर साइंस फिक्शन, वेरी मच फेमस। साइंस फिक्शन बहुत मशहूर है, इन पे बहुत सारी मूवीज भी बनी आगे चल के। द नॉवेल्स क्रिएटेड अल्टरनेटिव वर्ड्स विद विच टू क्रिटिसाइज रियल सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। वो साइंस पे बेस कर रहे होते हैं, यूटोपियन सिचुएशन पे बेस कर रहे होते हैं और उनका मल्टीपल पर्पजेज हो सकते हैं। इट्स नॉट ऑल द टाइम कि जी साइंस फिक्शन का काम क्रिटिसाइज करना है रियल सिनेरियो को, बल्कि इससे हट के भी हो सकता है। इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें भी बहुत सारी साइंस फिक्शन से ही दुनिया में वजूद में आई हैं। Gothic novel, it's
The Gothic novel is a novel having a prevailing atmosphere of mystery and terror. जैसे Gothic building structure है, Gothic architecture है, बिल्कुल वैसे ही the novel which have the situations and the circumstances of mystery and terror are called Gothic novel. Detective novels पूरी एक branch है novel की. The type of popular literature in which a crime is introduced and then investigated and the culprit is revealed with the passage of time. Detective novel में आपके माइंड में एक नाम बहुत मशहूर आ रहा होगा, शर्लक होम्स का. ठीक है, डिटेक्टिव नावल में उनका बड़ा नाम है डिटेक्टिव स्टोरीज में. ठीक है, शर्लक होम्स, commonly pronounced as Sherlock Holmes, but it's actually Sherlock Holmes. New journalism we have already discussed, so we are not going to repeat it over here. So let us have a look at short story as well as the novel. So there is a brief comparison between the two things. Short stories are shorter, novels are longer. Short stories are intended to be read in a single sitting. Novels are not intended to be read in a single sitting. Short story contains one basic plot. Novel can contain multiple plots. Multiple plots में subplots हो सकते हैं. ठीक है. Short stories focus on one or two characters. Novel can focus on multiple characters. क्योंकि plot multiple होते हैं, लिहाजा characters भी multiple होते हैं. Short stories generally cover a very short time period, whereas novel can cover very long period of time. So this is all about the fiction, types of fiction, novel, short story, novella, plot, characters, characterization, point of view. So this is the end of our today's lecture on fiction. If you have any questions or your comments, you can put them in the comment box. Thank you very much for being with us. If you have not subscribed our channel, Learning Made Easy by Tayyib Ijaz, you should subscribe it and press the bell icon so that you can get our videos instantly. Thank you very much. See you some other time.